Hello everyone, welcome back to our channel EduSciTech classes. In today's session, we are going to cover another important topic from every exam perspective. Okay, so the topic is Sahitya Academy Award. This topic comes under miscellaneous topics. We have already covered two miscellaneous topics. One was Poet Laureate, and the second one was yes Booker Prize winners. Okay, so in third topic, we are going to cover Sahitya Academy Award, in which we will discuss the winners and their famous works and the genres they wrote in. Okay, these details might seem small, but they can really help boost your preparation. If you are preparing for any exam that includes English literature, um, you can say like a NET JRF, HPSC assistant professor, MP, Uttarakhand. If you are preparing for any exam that includes English literature, you must cover these miscellaneous topics. Okay, and we are covering all these topics in miscellaneous series. Okay, so first we will discuss what is Sahitya Academy Award. Okay, so let's begin this class. See, the Sahitya Academy Award is the second highest literary honor. Okay, second highest means first highest literary award कौन सा है बताइए. Yes, Sahitya Academy Award second highest है, and the first is Jnanpith. Okay, this is highest literary award in India, which is given annually for best creative literary writings to the writers in any of 22 scheduled languages. And these scheduled languages are recognized in Indian Constitution. But after some time, from 2013, it include it includes English language also. So now Gyanpith Award is given in 23 languages. Okay. So first highest literary award is Gyanpith, and the second one is Sahitya Academy Award. The Sahitya Academy Award, India's National Academy of Letters, एम एट प्रोमोटिंग, इसमें क्या एम था कि वे प्रमोट कर सकें, प्रमोटिंग इंडियन लिटरेचर थ्रू आउट द वर्ल्ड. ओके, द अकेडमी annually confers on writers of the most outstanding books of literary merit. The awards are given for works published in any of 24 languages. आप इस चीजों को याद रखना कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है वो 22 लैंग्वेजेस में पहले दिया जाता था, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन 2013 से उन्होंने इंग्लिश को भी इसके अंदर इंक्लूड किया, और अब ज्ञानपीठ अवार्ड 23 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, लेकिन साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जिसको रिकॉग्नाइज किया है किसने, साहित्य अकेडमी. ओके, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ज्ञानपीठ को किन लैंग्वेजेस में मिलता है, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड को में किन लैंग्वेजेस के लिए मिलता है, तो यहाँ पे 24 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय अकेडमी. ओके, it was instituted in 1954. The award recognizes the promotes excellence in writing, acknowledge new trends. ओके, तो उसमें रिकॉग्नाइज करता है, प्रमोट करता है एक्सीलेंस इन राइटिंग्स, जो आउटस्टैंडिंग वर्क्स होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, उन वर्क्स को. द एनुअल प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अवार्ड, ये एनुअली मिलता है, अवार्ड रन्स फॉर द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, एंड द अवार्ड कंसिस्ट ऑफ एन एनग्रेव्ड, यहाँ पे बता रखा है कि क्या होगा, एक कॉपर प्लेट होगी, अ शॉल, अ कैश प्राइज ऑफ 1 लाख. देन ये हमारी इंट्रोडक्टरी डिटेल्स है. नाउ द लिस्ट. ओके, 1960 में फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था, एंड द फर्स्ट बुक वाज द गाइड, व्हिच इज रिटन बाय आर के नारायण. ओके, आर के नारायण इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर्स. ओके, तो आपको इनके वर्क्स पता होने चाहिए, सभी वर्क्स. ओके, ऑल वर्क्स आर इंपॉर्टेंट. आर के नारायण, यू मस्ट नो द समरी ऑफ ऑल दीज वर्क्स. ओके, हिज वर्क्स. तो यहाँ पे द गाइड है, जिसको 1960 में अवार्ड मिला था, देयर इट इज पीवाईक्यू. ओके, जो भी यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा हुआ, अलग से हाईलाइटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वो पीवाईक्यूज है. क्वेश्चन आए हुए. द गाइड 1960 में मिला था, ये एक नॉवल है. ओके, नेक्स्ट इज 1964 में द सर्पेंट एंड द रोप. ये किसने लिखा था, राजा राव ने, एंड नॉवल. दीज टू राइटर्स आर इम्पोर्टेंट, एंड इनके साथ में अरविंदो घोष भी आ जाते हैं आगे. पर आपको इन दोनों राइटर्स के वर्क्स इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए. इसके अलावा आपको इनके बारे में, इन्होंने कौन से वर्क्स मिले, इनको कौन से अवार्ड्स मिले हैं, उनकी समरी एंड द कैरेक्टर्स. ओके, आर के नारायण का इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है, इन्होंने किस फिक्शनल टाउन को इन्वेंट किया था, बताइए फिक्शनल टाउन क्या था. यस यस, मालगुड़ी.
ओके, इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, जितने भी वर्क्स हैं वो मालगुडी के अराउंड ही थे। इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो DSSS के दिल्ली सिलेबस में भी है, स्वामी नारायण। यस, ओके, स्वामी करके कोई वर्क है, आप इसको देखिएगा। स्वामी एंड फ्रेंड्स, यस, रिमेम्बर, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको इसकी डिटेल समरी पता होनी चाहिए। ओके, कि मैं सेकंड लेट मी रेज, तो फिक्शनल टाउन पता चल गया। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू नेट में भी कि कौन से फिक्शनल टाउन को इन्होंने क्या था, तो आर के नारायण का कौन सा टाउन था, मालगुडी। सर्पेंट ऑफ द रोप वाज रिटन बाय राजा राव, ये एक नॉवल थी इनकी। राजा राव का अदर इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, यस, राजा राव ने इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था कांथापुरा, और ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसकी समरी आपको होमवर्क में करनी है। ओके, नेक्स्ट 1965 में द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन, इनके राइटर थे वेरियर एल्विन, ये काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी है। ओके, इन्होंने फोक लिटरेचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका। नेक्स्ट इज 1967 शैडो फ्रॉम द लद्दाख, दिस वर्क वाज रिटन बाय भवानी भट्टाचार्य, इट इज ए नॉवल। ओके, नेक्स्ट इज, इनके वर्क्स भी आपको पता होने चाहिए, देर आर 5 to 6 वर्क्स, तो आपको उनके नेम्स एटलीस्ट पता होने चाहिए अगर आप नेट एंड जेआरएफ के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज 1969 एन आर्टिस्ट इन लाइफ, निरंजन रॉय, ये बायोग्राफी है। 1971 मॉर्निंग फेस, दिस वाज रिटन बाय मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद के सभी वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं, ये एक नॉवल थी। मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट करती हूँ, आपको ये वाले वर्क्स जो इनके वर्क्स है राइटर के, आर के नारायण के, वे कंप्लीट करना है। द सर्पेंट एट द रोप, जिनको राजा राव ने लिखा है, उनके सभी वर्क्स आपको देखना है। नेक्स्ट इज मुल्कराज आनंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, ऑल दोस राइटर्स, ठीक है। 1975 स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, निराज सी चौधरी ने इसको लिखा है, ये एक बायोग्राफी है। 1975 जवाहरलाल नेहरू सर्वपल्ली गोपाल, बायोग्राफी। 1975 1977 आजादी चमन नहल, इस वक्त को आपको याद रखना है बस। 1978 फायर ऑन द माउंटेन, अनीता देसाई, इंपॉर्टेंट राइटर, आपको इनके सभी वर्क्स को देखना है। नेक्स्ट इज 1979 इनसाइड द हवेली, दिस वर्क वाज रिटन बाय रमा मेहता, ये एक नॉवल है। नेक्स्ट इज ऑन द मदर 1980 के आर श्रीनिवास यंगर, तो ये बायोग्राफी है। 1981 रिलेशनशिप जयंता महापात्र, पोइट्री। 1982 लास्ट लेब्रिंथ अरुण जोशी, ये एक नॉवल है, लेकिन इनके सभी वर्क आपको पता होने चाहिए। 1983 लेटर डे पाम, निसीम एस्कील, इंपॉर्टेंट राइटर, अगेन इनके सभी वर्क्स को एक बार आप गो थ्रू कर लेना, इज एन इंपॉर्टेंट राइटर। 1984 द कीपर ऑफ द डेड, दिस वाज रिटन बाय केकी एन दारूवाला, ये एक पोइट्री कलेक्शन है। नेक्स्ट इज 1985 collected poems which was written by Kamala Das, important. Next is 1986 Rich Like Us, then Tara Sehgal, it is a novel. 1987 Trap Falls in the Sky, which was written by Shiv K Kumar, it is a poetry collection. Okay, 1988 The Golden Gate, Vikram Seth, important writer, again इसके इनके आपको सारे वर्क्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज 1989 द शेडो लाइंस, अमिताभ घोष, इंपॉर्टेंट। शेडो लाइंस में पार्टीशन, ये पार्टीशन नॉवल, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 1990 दैट लॉन्ग साइलेंस, दिस वाज रिटन बाय शशि देशपांडे, इट इज अ नॉवल। 1991 द ट्रोटन-नामा, I.L.S. Shelley was writer of this novel. 1992 Our Trees Still Grows in Dehra, which was written by Ruskin Bond, important again. 1993 After Amnesia, this was written by G.N. Divi, ये ऐसे है। नेक्स्ट इज 1994 संदीप, which was written by Dom Morris, poetry collection. नेक्स्ट इज 1996 Memories of Rain, सुनेत्रा गुप्ता, ये नॉवल है एक। 1998 फाइनल सॉल्यूशन एंड अदर प्लेस, महेश दत्तानी, इंपॉर्टेंट प्ले है, ड्रामा। ओके, नेक्स्ट इज द कलेक्टेड पोएम्स which was written by A.K. Ramanujan, again important. 2000 Cold, which was written by Kiran Nagarkar, ये एक नॉवल है।
2001 Rajaji Alive, that was written by Rajmohan Gandhi, biography. 2002 A New World, written by Amit Chaudhary, novel. 2003 The Perishable Empire, important. 2004 Memories of the Welfare State, Upmani Chatterjee, ये novel है. 2005 Algebra of Infinite Justice, important again. 2006 The Sari Shop, Rupa Bajwa, ये एक novel है. 2007 Disorderly Woman, Malathi Rao, this is also a novel. No. 2009 Mahabharata, an inquiry into the human condition, that was written by Chaturvedi Badrinath. 2010 The Book of Rushel, written by Esther David. Next is 2011 India After Gandhi. This was written by Ramchandra Guha, and it is an historical narrative. 2012 These Errors Are Correct, written by Jeet Thail, ये एक पोइट्री है. नेक्स्ट इज 2013 Labrinum for My Head, ये नॉर्थ ईस्ट राइटर है. शॉर्ट स्टोरीज है. Labrinum for My Head. 2014 Trying to Say Goodbye, आदिल जुसवाला, पोइट्री. 2015 Chronicle of Corpse Bearer, ये किसने लिखा है? सीरियस मिस्ट्री. आपको इनके वर्क्स के नेम पता होने चाहिए. नेक्स्ट इज 2016 M and Big Home, जेरी पिंटो, एक नॉवल है. 2017 द ब्लैक हिल, ममंग दाई ने लिखा है. अगेन इंपॉर्टेंट, इनके वर्क्स को हमने बुकर प्राइज में भी किया था. अब आप ये बताइए वर्क कौन सा था. नेक्स्ट इज 2018 द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट, अनीस सलीम ने लिखा है वर्क, ये एक नॉवल है. 2019 एन एरा ऑफ डार्कनेस, इंपॉर्टेंट, आपको इनके वर्क्स के नेम पता होने चाहिए. 2020 व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, अरुंधति सुब्रमण्यम ने वर्क लिखा है, इंपॉर्टेंट है अगेन. नेक्स्ट इज 2021 थिंग्स टू लीव बिहाइंड, रिटन बाय नमिता गोखले, नॉवल है एक. 2022 ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, अनुराधा रॉय ने ये लिखी है, एक नॉवल है. 2023 रिक्वेम इन राग जानकी, तो ये नीलम गौर ने लिखी है, अगेन ये एक नॉवल है. ओके यहाँ पे चीज आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, हमने ये लिस्ट देख ली. ओके एक बार में हम इसको याद भी नहीं कर सकते. देन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सी अब एक बार देख लीजिए. ये सोर्सेज आपको कहीं भी मिल जाएंगे. यू कैन गेट दिस लिस्ट एंड डिटेल्स फ्रॉम विकिपीडिया एंड अदर सोर्सेज एज वेल. इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो भी वर्क्स, जिन भी वर्क्स को कोई अवार्ड मिला होता है या प्राइज मिला होता है किसी चीज के राइटर को, तो वो हमें समझ जाना चाहिए कि वे राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं. ओके अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि आप उन राइटर्स को देखो, उन राइटर्स को आपके जिन वर्क्स के लिए वो उन्हें अवार्ड मिला गया है, उन वर्क्स के नाम एटलीस्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए. नेट एंड जेआरएफ में क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इतने डीप नहीं आते. अगर आपने देखे हो मैच द फॉलोइंग में मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैच करना होता है किस राइटर ने कौन सा वर्क लिखा है, और वे कोई भी रैंडम वर्क नहीं उठा के बोलते कि आप इसको मैच करो. वे वर्क्स वही देते हैं जिन वर्क्स को या तो किसी प्राइज मिला हुआ है या फिर उसमें कोई इंपॉर्टेंट थीम थी बहुत ज्यादा. ओके जैसे द गाइड है, क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको गाइड का नाम पता होना चाहिए, किसने लिखा है, आर के नारायण. जब आर के नारायण ने लिखा तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या है. देन तो आप इस वीडियो को देखकर सिर्फ ऐसे गो थ्रू ना होकर, आप जिन राइटर्स को मैंने हाईलाइट किया है, सर्कल किया, आप उन राइटर्स के नेम लिखिए और उनके नोट्स बनाइए. लाइक आर के नारायण में जाके आज आप इनके आर के नारायण का इंट्रो क्या था, कितने वर्क्स लिखे हैं इन्होंने, क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, किस टाइम पर लिखे हैं. ओके द नेक्स्ट वन इज राजा राव, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर. आपको ये पता होने चाहिए इनके क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स थे. कांथापुरा पे इतने ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक पीवाईक्यू, अगर आपने देखे हो. ओके नेक्स्ट इज हमें सब वर्क नहीं करना, इनके सिर्फ नाम पता होने चाहिए कि भवानी भट्टाचार्य ने कोई वर्क लिखा है, शेडो फ्रॉम द डार्क. ओके नेक्स्ट इज मुल्क राज आनंद, मॉर्निंग फेस, इनके जितने भी वर्क्स हैं आपको सभी पता होने चाहिए विद कैरेक्टर्स. ओके नेक्स्ट इज अनीता देसाई, प्लीज डू दिस राइटर इन डिटेल. ओके विद ऑल वर्क्स विद कैरेक्टर्स, थीम्स आपको पता होनी चाहिए. ओके किरण देसाई, देसाई से अगर आपको कोई नाम भी याद आ रहा हो तो आप बता सकते हो, अनीता देसाई एंड किरण देसाई, इन दोनों को रिलेट करके करिएगा. ओके
नेक्स्ट इज जो आपको डिटेल में करने हैं, अरुण जोशी, निसीम एस्कील, कमला दास। ओके, तो यहाँ तक कितने हो गए? कमला दास, निसीम, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव। ओके, सिक्स राइटर्स वी हैव फॉर होमवर्क। ओके, एंड विक्रम सेठ, इसके इम्पोर्टेंट बुक भी अगर आपको याद होगा, सुटेबल बॉय। ओके, काफी टाइम पीवाईक्यू है इन पर, जितने भी ये अलग से ब्लू लाइंस उसमें लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज जो आपको घर पे कवर करना है आज, महेश दत्तानी के वर्क्स के नेम पता आपको होने चाहिए जरूर ही, ए के रामानुजन के, एंड अनुराधा रॉय, देयर इज वन मोर, वेट, यस, अनुराधा रॉय के बाद है आपके पास ममंग दाई के वर्क्स आपको पता होने चाहिए, शशि थरूर, इनका सिर्फ यही वर्क आपको याद रखना, व्हेन गॉड इज ट्रैवलर, अनुराधा रॉय। ओके, सो ये आपके होमवर्क में है। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जैक्टली विदाउट एनी कोचिंग, सो वी आर हेयर फॉर यू। आपको जैसे गाइड किया जा रहा है, ट्राई करें कि आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएं, रिवाइज करें टाइम टू टाइम, एंड ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पे ट्रस्ट रखें कि ठीक है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर कोई आपको बताने वाला है कि आपको ऐसे करना चाहिए, यू शुड ट्राई। ओके, आप ट्रस्ट भी शो करें कि ठीक है अगर बताया तो आप ट्राई करके देखें, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स ऑफ ऑल दिस efforts. Okay, so please do your homework. That's all for today. We will meet you in next session. Okay, thank you. Please subscribe our channel and like the video. Thank you.